These can be different. I too tell how many? Come, let us play a game together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. Let one child stand in the center and play a tune. Everyone must run in a circle as long as the music plays. The child who is playing the music will suddenly stop it and call out a small number like 5, 4, or 2 loudly. Children have to form groups according to the number called out. The children who cannot join any group will have to leave the game. Continue to play this game till only 2 children are left in the circle. Come, let's talk about this game. How did you feel when you could join a group of the required number? Why? How did you feel if you could not join any group? Why? Do you like to be with people? With whom do you like to be more? How would you feel if you always had to be alone? In the game, tell how many playing the music and calling out the numbers can be done by anyone. Depending on the number of children, the number called out to form groups can be more or less. 139. अलग-अलग हो सकते हैं। कितने? आओ, हम एक खेल खेलते हैं। आपको इस खेल से परिचित होना चाहिए। सभी बच्चे एक घेरे में खड़े होते हैं। एक बच्चा केंद्र में खड़ा होता है और एक धुन बजाता है। जब तक संगीत चलता है, सभी को एक घेरे में दौड़ना चाहिए। जो बच्चा संगीत बजा रहा है, वह अचानक इसे रोक देगा और जोर से एक छोटा नंबर जैसे 5, 4 या 2 बुलाएगा। बच्चों को बुलाए गए नंबर के अनुसार समूह बनाना होगा। जो बच्चे किसी समूह में शामिल नहीं हो सकते, उन्हें खेल छोड़ना होगा। इस खेल को तब तक खेलते रहें जब तक केवल 2 बच्चे घेरे में न रह जाएं। आओ, इस खेल के बारे में बात करते हैं। जब आप आवश्यक संख्या के समूह में शामिल हो सके तो आपको कैसा लगा? क्यों? यदि आप किसी समूह में शामिल नहीं हो सके तो आपको कैसा लगा? क्यों? क्या आपको लोगों के साथ रहना पसंद है? आप किसके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं? यदि आपको हमेशा अकेले रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? खेल कितने बताओ में संगीत बजाना और नंबर बुलाना किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। बच्चों की संख्या के आधार पर समूह बनाने के लिए बुलाए गए नंबर अधिक या कम हो सकते हैं। कितने? आओ, हम एक खेल खेलते हैं। आपको इस खेल से परिचित होना चाहिए। सभी बच्चे एक घेरे में खड़े होते हैं। एक बच्चा केंद्र में खड़ा होता है और एक धुन बजाता है। जब तक संगीत चलता है, सभी को एक घेरे में दौड़ना चाहिए। जो बच्चा संगीत बजा रहा है, वह अचानक इसे रोक देगा और जोर से एक छोटा नंबर जैसे 5, 4 या 2 बुलाएगा। बच्चों को बुलाए गए नंबर के अनुसार समूह बनाना होगा। जो बच्चे किसी समूह में शामिल नहीं हो सकते, उन्हें खेल छोड़ना होगा। इस खेल को तब तक खेलते रहें जब तक केवल 2 बच्चे घेरे में न रह जाएं। आओ, इस खेल के बारे में बात करते हैं। जब आप आवश्यक संख्या के समूह में शामिल हो सके तो आपको कैसा लगा? क्यों? यदि आप किसी समूह में शामिल नहीं हो सके तो आपको कैसा लगा? क्यों? क्या आपको लोगों के साथ रहना पसंद है? आप किसके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं? यदि आपको हमेशा अकेले रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? खेल कितने बताओ में संगीत बजाना और नंबर बुलाना किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। बच्चों की संख्या के आधार पर समूह बनाने के लिए बुलाए गए नंबर अधिक या कम हो सकते हैं। Us prefer to live with people than to live alone. We always live in groups.
Let's see one such group of Gurleen, Nagarajan and their children Tanya and Samar. How are these people related to each other? The people in the picture you saw belong to one family. We often see pictures or photographs of such families. Where do we see such a family? Are all families similar to this one? Let us read about a few families. Sitama lives in her ancestral house in a small city Guntur. Her dada, Dadi, younger Chacha and Bua live on the ground floor. In one portion of the first floor, Sitama lives with her father, mother and younger sister Jatama. In the other portion live her Taiji and his 3 children. Her Taiji died just a few months. It would be good to keep in mind the discussion done in Chapter 4 about the children's families. The lesson can be introduced by talking about the diversity in the families of the children in the class. अभी अकेले रहने के बजाय लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम हमेशा समूहों में रहते हैं। चलिए एक ऐसे समूह को देखते हैं, गुरलीन, नागराजन और उनके बच्चे तान्या और समर। ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? आपने जो तस्वीर देखी, वे एक परिवार से संबंधित हैं। हम अक्सर ऐसे परिवारों की तस्वीरें या फोटो देखते हैं। हम ऐसे परिवार को कहाँ देखते हैं? क्या सभी परिवार इस परिवार के समान हैं? चलिए कुछ परिवारों के बारे में पढ़ते हैं। सिटम्मा अपने पैतृक घर में एक छोटे शहर गुंटूर में रहती हैं। उनके दादा, दादी, छोटे चाचा और बुआ ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। पहले फ्लोर के एक हिस्से में सिटम्मा अपने पिता, माता और छोटी बहन गितम्मा के साथ रहती हैं। दूसरे हिस्से में उनके ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। उनकी ताईजी कुछ महीने पहले ही गुजर गई। यह अच्छा होगा कि हम अध्याय 4 में बच्चों के परिवारों के बारे में की गई चर्चा को ध्यान में रखें। पाठ को कक्षा में बच्चों के परिवारों की विविधता के बारे में बात करके पेश किया जा सकता है। Her elder Chacha and the new Chachi live in one of the rooms on the terrace. They are newly married. Before dinner, Sitama's mother teaches all the children. Food for the whole family is cooked in the same kitchen on the ground floor. They all make special effort to be together at dinner time. Nowadays, Taoji's younger daughter sleeps with Sitama's mother at night. In the morning Sitama helps her get ready for school. Tara, who all are there in Sitama's family? How is the relationship between the different people in the family? In the last 1 year, what are the changes that happened Tara in the family? Tara lives with her Amma and Nana in Chennai. Her Amma Meenakshi is not married. She has adopted Tara. Meenakshi goes to the office in the morning and returns in the evening. When Tara returns from school, her Nana takes care of her. He is the one who feeds her, helps her to do homework and also plays with her. During vacations, the 3 of them go to far-off places and enjoy themselves. At times, Tara's mousy, you may be very careful and sensitive to deal with children if they wish to share problems related to drug addiction of their family members. The harmful effects of drugs/narcotics may be discussed in the class. Such issues should also be discussed in the in-service training programs. 141. उसकी बड़ी चाचा और नई चाची छत पर के एक कमरे में रहते हैं। वे नवविवाहित हैं। रात के खाने से पहले सितामा की माँ सभी बच्चों को पढ़ाती है। पूरे परिवार के लिए खाना उसी रसोई में बनाया जाता है जो ग्राउंड फ्लोर पर है। वे सभी रात के खाने के समय एक साथ होने का विशेष प्रयास करते हैं। आजकल
ताऊजी की छोटी बेटी रात में सीता माँ की माँ के साथ सोती है। सुबह सीता माँ उसकी स्कूल के लिए तैयार होने में मदद करती है। तारा, सीता माँ के परिवार में कौन कौन है? परिवार के विभिन्न लोगों के बीच संबंध कैसे हैं? पिछले 1 साल में परिवार में क्या बदलाव हुए हैं? तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी अम्मा मीनाक्षी अविवाहित है। उन्होंने तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को लौटती है। जब तारा स्कूल से लौटती है तो उसका नाना उसकी देखभाल करता है। वही उसे खाना खिलाता है, होमवर्क करने में मदद करता है और उसके साथ खेलता है। छुट्टियों के दौरान तीनों दूर दूर के स्थानों पर जाते हैं और आनंद लेते हैं। कभी कभी तारा की मौसी। यदि बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की नशे की लत से संबंधित समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सावधान और संवेदनशील होना चाहिए। कच्चे पदार्थों, नशीले पदार्थों के हानिकारक प्रभावों पर कक्षा में चर्चा की जा सकती है। ऐसे मुद्दों पर इन सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा की जानी चाहिए। 141 And their children also come to their house. At such times they play together for long hours and also chit-chat. Who takes care of Tara? How? What are the things the family members do together? Sarah and Habib live in a city. Both are employed. Habib is a clerk in a government office and Sarah teaches in a school. Habib's Abu is retired and lives with them. In the evening, the three of them sit together and watch television or play cards. Abu enjoys watching television with the others. He enjoys the discussion as well. On holidays, the neighbors' children come to their house and create a lot of fun. Everybody enjoys together. They play games, go out and at times go for plays and movies. Who all are there in this family? Abu enjoys watching television with the others. Why? How do the family members enjoy? Totaram lives with his father, uncle and cousin brothers in a colony in Mumbai. Totaram and his brothers have come to Mumbai to study. His father and uncle work here. Everybody does the household work together. Food cooked by Totaram's chacha is liked by everyone. Totaram's father does it may be possible that children from such families, drug-addicted members, may fall victim to such habits/practices. A timely action needs to be taken to prevent them. On these theme, charts and posters can be prepared by the children with the support of teachers and discuss in the class. 142 और उनके बच्चे भी उनके घर आते हैं। ऐसे समय में वे लंबे समय तक एक साथ खेलते हैं और बातचीत करते हैं। तारा की देखभाल कौन करता है? कैसे? परिवार के सदस्य एक साथ क्या करते हैं? सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं। दोनों काम करते हैं। हबीब एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क है और सारा एक स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों एक साथ बैठकर टेलीविजन देखते हैं या ताश खेलते हैं। अब्बू दूसरों के साथ टेलीविजन देखना पसंद करते हैं। उन्हें चर्चा करना भी पसंद है। छुट्टियों पर पड़ोसी के बच्चे उनके घर आते हैं और बहुत मजा करते हैं। सभी एक साथ आनंद लेते हैं। वे खेल खेलते हैं, बाहर जाते हैं और कभी-कभी नाटक और फिल्मों के लिए जाते हैं। इस परिवार में कौन कौन है? अब्बू दूसरों के साथ टेलीविजन देखना क्यों पसंद करते हैं? परिवार के सदस्य कैसे आनंद लेते हैं?
टोटाराम अपने पिता, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई के एक कॉलोनी में रहता है। टोटाराम और उसके भाई पढ़ाई के लिए मुंबई आए हैं। उसके पिता और चाचा यहाँ काम करते हैं। सभी मिलकर घरेलू काम करते हैं। टोटाराम के चाचा द्वारा पकाया गया खाना सभी को पसंद है। टोटाराम के पिता करते हैं। ऐसा संभव है कि ऐसे परिवारों के बच्चे, नशे के आदी सदस्य, ऐसे आदतों प्रथाओं के शिकार हो सकते हैं। उन्हें रोकने के लिए समय पर कार्रवाई की आवश्यकता है। इस विषय पर बच्चों द्वारा शिक्षकों के सहयोग से चार्ट और पोस्टर तैयार किए जा सकते हैं और कक्षा में चर्चा की जा सकती है। Shopping. A part of the money earned is sent to Totaram's dada in the village. Totaram's mother, Dada, Dottie, Chachi, and younger brothers and sisters live in their parental house in the village. Once a year, Totaram goes to his village. He misses his mother very much. He writes long letters to her. How do Totaram's family members keep contact with each other? Which members of Totaram's family live in the city and which live in the village? Why? Krishna and Kaveri live with their father. In the morning, all the three leave home together. Krishna leaves Kaveri at school and goes to college. Their father goes to the shop for the day. Kaveri returns from school in the afternoon. She unlocks the house and waits for Krishna. On returning from college, Krishna and Kaveri eat food together. Kaveri goes out to play after doing her schoolwork. On returning she either plays Carom 143. कमाई का एक हिस्सा टोटाराम के दादा को गांव में भेजा जाता है। टोटाराम की मां, दादा, दादी, चाची और छोटे भाई बहन अपने पैतृक घर में गांव में रहते हैं। साल में एक बार टोटाराम अपने गांव जाता है। वह अपनी मां को बहुत याद करता है। वह उन्हें लंबे पत्र लिखता है। टोटाराम के परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ संपर्क कैसे रखते हैं? टोटाराम के परिवार के कौन से सदस्य शहर में रहते हैं और कौन से गांव में? क्यों? कृष्ण और कावेरी अपने पिता के साथ रहते हैं। सुबह तीनों एक साथ घर से निकलते हैं। कृष्ण कावेरी को स्कूल छोड़ता है और कॉलेज जाता है। उनके पिता दिन के लिए दुकान पर जाते हैं। कावेरी दोपहर में स्कूल से लौटती है। वह घर का ताला खोलती है और कृष्ण का इंतजार करती है। कॉलेज से लौटने पर कृष्ण और कावेरी साथ में खाना खाते हैं। कावेरी अपने स्कूल के काम करने के बाद खेलने जाती है। लौटने पर वह या तो कैरम खेलती है, with her brother or watches television. When father returns home, they cook food and then eat together. During vacations, Kaveri goes to stay with her mother. Krishna also stays there for a few days, but he likes to stay in his own house. All his things and his father are here. How does Krishna take care of his sister? What activities are done together in the family? You have read about some families. You discussed some questions also. What is a family? What are the different types of families? You must have formed your own opinion about this by now. What are the things that happen in a family? Put on those sentences which tell the various things that happen in families. Members of a family often resemble each other. The family members love each other very much. One becomes a part of a family by being born or getting married into that family. Family members often live together in the same house.
Elders in the family earn money for the family. In the lesson, we have talked about certain families. Besides these, there are other kinds of families as well. To understand this diversity, ask the children to talk about their families. भाई के साथ या टेलीविजन देखती है। जब पिता घर लौटते हैं तो वे खाना बनाते हैं और फिर साथ में खाते हैं। छुट्टियों के दौरान कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी वहाँ कुछ दिनों के लिए रहता है, लेकिन उसे अपने घर में रहना पसंद है। उसकी सारी चीजें और उसका पिता यहाँ है। कृष्णा अपनी बहन का ख्याल कैसे रखता है? परिवार में एक साथ कौन सी गतिविधियां की जाती है? आपने कुछ परिवारों के बारे में पढ़ा है। आपने कुछ सवालों पर चर्चा की। परिवार क्या है? परिवार के विभिन्न प्रकार क्या हैं? आपने अब तक इसके बारे में अपनी राय बनाई होगी। परिवार में क्या चीजें होती हैं? उन वाक्यों पर लगाएं जो परिवारों में होने वाली विभिन्न चीजों के बारे में बताती हैं। परिवार के सदस्य अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कोई परिवार का हिस्सा तब बनता है जब वह उस परिवार में जन्म लेता है या शादी करता है। परिवार के सदस्य अक्सर एक ही घर में रहते हैं। परिवार के बड़े सदस्य परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। पाठ में हमने कुछ परिवारों के बारे में बात की है। इसके अलावा अन्य प्रकार के परिवार भी हैं। इस विविधता को समझने के लिए बच्चों से उनके परिवारों के बारे में बात करने के लिए कहें। 144 And if there is a fight amongst themselves. In a family, children and the old are taken care of. Think of some other things about your family and write in the space provided. Saitama's family tree. Can you imagine a family in the form of a tree? Saitama's family tree is drawn here. Dada younger chacha bua elder dadi elder nana nanny chacha chachi taji taiji papa ma Saitama jatama. Draw your family tree in the notebook. For this, take help from your elders. For help you can refer to Saitama's family tree. के सदस्य एक साथ रहते हैं, भले ही उनके बीच झगड़ा हो। एक परिवार में बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखा जाता है। अपने परिवार के बारे में कुछ और बातें सोचें और दिए गए स्थान में लिखें। सितामा का परिवार वृक्ष। क्या आप एक परिवार की कल्पना वृक्ष के रूप में कर सकते हैं? सितामा का परिवार वृक्ष यहाँ बनाया गया है। दादा छोटे चाचा बुआ बड़ी दादी बड़ी नाना नानी चाचा चाची ताऊजी ताईजी पापा माँ सितामा गीता माँ अपने परिवार का वृक्ष नोटबुक में बनाएं। इसके लिए अपने बड़ों से मदद लें। मदद के लिए आप सितामा के परिवार वृक्ष का संदर्भ ले सकते हैं। 145